Hello students, so this is lecture 3, operations of the microprocessors. In last lecture we have also discussed the operation of the microprocessor. So there are three type of operations, those are being performed by the microprocessor. First one is what? The operations, those are initiated by the microprocessor itself, and internal operations. In the internal operations, peripheral devices are not required. And third is externally initiated operations or peripheral initiated operations. So let us discuss. So first, microprocessor initiated operations. So इसमें बेसिकली हमने डिस्कस किया था मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट. So next is how to perform these operations. So first step is identify the memory or input output with its address. एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था लाइक ए डिलीवरी में. then second, generate or provide the synchronization signal. then data transfer. So data transfer आप परफॉर्म करोगे by using data बस. synchronization signals आपको बताया था मैंने किस तरह से जनरेट होंगे, और ये स्टेप आप परफॉर्म करोगे विद यूजिंग एड्रेस बस. एंड सेकंड इज internal operations. So internal operations are, first is to store the data. तो डाटा आप स्टोर करेंगे बेसिकली जनरल पर्पस रजिस्टर और बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर इसमें डिस्कस किया था हमने. सेगमेंटेशन रजिस्टर भी डिस्कस किया था हमने. मेमोरी सेगमेंटेशन का कंसेप्ट था बेसिकली कि होल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सम सेगमेंट. सो मल्टीपल यूजर कॉन्फ़िगरेशन को ये बेसिकली सपोर्ट करता है. ओके, देन सेकंड इज परफॉर्म द arithmetical logical operations, and this is performed with the help of ALU. Then third is testing for the conditions. So testing for the condition with the help of flag. Then sequence the execution of the instruction. So this is performed by instruction pointer. Then store the data temporarily with the help of stack. Okay. Then third is externally initiated operations. So externally initiated operations कौन से हो जाएंगे basically? Reset, ready, interrupt, right? So first is internal operations. So in internal operations, stores the data. So stores the data. This operation is being performed by using general purpose register, base or index based register. Okay. So accumulator register. So there are different general purpose register. So these registers are AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, DH, and combination of AL and AH is what? AX. Similarly, this is what? BX, and this is CX, and this is DX. Then what is AH? So AH is what? Higher byte of AX. VH is what? Higher byte of VX. CH is similarly higher byte of CX. Higher byte of DX is DH. So this is like suppose this is A0 to, so this is 16-bit register. Okay. So this will be what? A of 7, and this is what? A of 8, and suppose this is A of 15. So this is what? A of L, and this is what? A of H. Okay. Higher byte हुई accumulator register की AH, similarly higher lower byte हुई accumulator register की, तो basically हो जाएगा क्या? A of L. So it consists of two 8-bit register AL and AH. So combined AX. So next is
used for the input and outputting the data to or from an input output. So this is port. So जब भी इनपुट आउटपुट पोर्ट से आपको डाटा लेना हो या डाटा आपको सेंड करना हो तो बेसिकली एक्यूमुलेटर रजिस्टर का यूज होता है. कैसे? सपोज मैं लिखूं आई एन इन AX और यहाँ पे सपोज कोई पोर्ट नंबर लिखूं तो बेसिकली मीनिंग क्या हुआ कि जो पोर्ट नंबर स्पेसिफाई है उस पोर्ट से क्या होगा, डाटा इनपुट होगा. डाटा इनपुट तो होगा मतलब वो डाटा कितने बिट का है, डाटा 16 बिट का रजिस्टर, क्योंकि आपने 16 बिट का रजिस्टर लिया हुआ है. सपोज कुछ इस तरह से लिखूं AN A ऑफ L फिर पोर्ट नंबर कुछ इतना, तो इस पोर्ट नंबर से डाटा इन होगा. कितने बिट का डाटा है, कितने बिट का डाटा है, बेसिकली 8 बिट का डाटा है इसमें. And this accumulator register is used for what? Multiplication and division operations. So whenever we will perform the multiplication and division operation, then accumulator register को use करेंगे basically. Okay. So next is, so this is base register and BX. Similarly, like accumulator register, it also consists of two 8-bit register BL and BH. When we combine it BX, then this will be what? 16-bit register. Okay, this is the only register whose contents can be used for the addressing the 8086 memory. Okay, and addressing contains. Okay, so suppose what is the meaning of this and this? Contents of BX, contents of CX. Okay, 8086 में basically इस तरह से represent करते हैं. So this is the only register whose contents can be used for the addressing of the 8086 memory. So 8086 इस केवल एक ही सिंगल ऐसा रजिस्टर है जिसमें ये बेसिकली एड्रेस मेमोरी की एड्रेसिंग के लिए बेसिकली यूज होता है. एग्जांपल सपोज मैं लिखूं मूव AX so simply this is used for what? Addressing. ये बेसिकली मेमोरी के एड्रेस को नोट पॉइंट आउट कर रहा है बेसिकली. ओके, एंड नेक्स्ट इज all memory references utilizing this register contains for the addressing use the DS segment. DS is what? Data segment as a default segment register. So segmentation register में हमने पढ़ा बेसिकली. So data segment, code segment, extra segment. Okay, data segment, code segment, stack segment, extra segment. So data segment means data store होगा, code segment means particular कोई code store होगा, program store होगा. Access segment means डाटा जो आपने स्टोर कर लिया, इसके अलावा भी अगर आपको डाटा स्टोर करना है या कोई कॉमन डेटा मल्टी यूजर कॉन्फ़िगरेशन के लिए सपोर्ट करता है बेसिकली, तो उसके लिए कॉमन डाटा जो स्टोर करना है सो एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर होगा. स्टैक सेगमेंट टेम्परेरी जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम टेम्परेरी डाटा जो आपको स्टोर करना है वो यहाँ पे स्टोर होगा. इट मीन्स द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू some segment and these segments are data segment, code segment, extra segment, and stack segment. Each segment has 64 KB size. Okay, and here you know that 8086 has 20 bit address line. So there will be 2 to the power 20 memory location. It means 2 to the power 20 memory location. Okay, so then physical memory will be of 20 bits. Physical memory will be 20 bits, but we have 16-bit register. So there, this is the another advantage of the memory segmentation is what? By using 16-bit register, we can compute or calculate the 20-bit physical address. So physical address of 20 बिट, मतलब फिजिकल जो एड्रेस होगा वो होगा 20 बिट का. सो बेसिकली दो टाइप के एड्रेस होंगे इसमें. एक होगा इफेक्टिव एड्रेस. सो इफेक्टिव एड्रेस जो होगा बेसिकली वो होगा इनका डाटा सेगमेंट का. सपोज डाटा का और कोई अगर स्टोर है तो डाटा सेगमेंट, देन कोड सेगमेंट, extra segment, stack segment.
राइट। और ये भी कितने कितने बिट के होंगे, 16 बिट के होंगे, ये भी 16 बिट के रजिस्टर हैं। ओके एंड ओके, टोटल मेमोरी जो भी है वो कितने की, 64 KB की इफेक्टिव एड्रेस। एंड दूसरा होता है कौन सा आपका ऑफसेट। सो इफेक्टिव एड्रेस और ऑफसेट का यूज करके हम फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये हम अभी आगे एक्सप्लेन भी करने वाले हैं, बट अभी यहाँ पे लिखा मैंने कि द ऑल मेमोरी रेफरेंसेस यूटिलाइजिंग दिस रजिस्टर कंटेंट्स फॉर द एड्रेसिंग, बोला भी मैंने, अभी बताया भी है, दिस इज द ओनली रजिस्टर whose contents can be used for the addressing of the 8086 मेमोरी। जैसे ये बता रहा है एग्जांपल आपको कि एड्रेसिंग के लिए बेसिकली ये यूज हुआ है, कंटेंट्स के लिए। ठीक है, एड्रेस पॉइंट आउट कर रहा है बेसिकली ये। सो एंड डिफॉल्ट segment for this application on this addressing is what, data segment। ओके, सपोज मैंने कुछ इस तरह से लिखा मूव AX, BX। सो इसका मीनिंग क्या हुआ बेसिकली, इसका मीनिंग ये हुआ बेसिकली कि सपोज अक्यूमुलेटर में क्या मूव होगा, अक्यूमुलेटर में पर्टिकुलर एक मेमोरी का कंटेंट अक्यूमुलेटर में जाएगा बेसिकली, बट मेमोरी का एड्रेस क्या है, मेमोरी का एड्रेस है बेसिकली this address of memory is given by data segment and BX। ओके, सो पर्टिकुलर डाटा सेगमेंट में तो क्या होगा, इफेक्टिव एड्रेस स्टोर होगा, और BS में बेसिकली क्या स्टोर होगा आपका, BS में आपका ऑफसेट स्टोर होगा। सो इट मींस केवल BX ही ऐसा रजिस्टर है जो कि मेमोरी एड्रेसिंग में बेसिकली एड्रेसिंग मेमोरी को एड्रेस करने के लिए यूज हुआ है बेसिकली। एक्यूमुलेटर में आपने देखा कि एक्यूमुलेटर बेसिकली यूज होता है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हो रहा है, डिवीजन के लिए यूज हो रहा है, डाटा को इनपुट और आउटपुट पोर्ट पे पर्टिकुलर किसी पोर्ट पे डाटा इनपुट करने के लिए, या पर्टिकुलर इनपुट लेने के लिए पर्टिकुलर पोर्ट से, या पर्टिकुलर आउटपुट पे डाटा सेंड करने के लिए यूज करेंगे एक्यूमुलेटर, राइट। तो सिमिलरली बेस रजिस्टर इज फॉर व्हाट, दिस इज द ओनली रजिस्टर whose contents can be used for the addressing। और किस तरह से यूज करेंगे, इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या हुआ बेसिकली कि एक्यूमुलेटर में बेसिकली क्या मूव होगा, एक्यूमुलेटर में बेसिकली मेमोरी लोकेशन जहां पे क्या हुआ बेसिकली डाटा सेगमेंट और BX डाटा सेगमेंट डाटा। ओके, इसको अगर सोल्व करना हो तो 20 बिट का फिजिकल एड्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बेसिकली तो कुछ इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, DS इंटू 10H से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन BX को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये जो 20 बिट की जो फिजिकल मेमोरी एड्रेस मिलेगा, सो इस लोकेशन पे जो भी डाटा आपका पड़ा है वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। सो देखो डिफॉल्ट इसके लिए जो डाटा सेगमेंट यूज किया है वो कौन सा सेगमेंट यूज किया है बेसिकली, इसके लिए जो सेगमेंट यूज किया है वो कौन सा यूज किया है, डाटा सेगमेंट यूज किया है। यही इसका मीनिंग था बेसिकली। ओके, सो नेक्स्ट इज CX, and this CX is called counter register। So what you have observed, so simply accumulator A से डिनोट किया, B for what, base register, and C for what, counter register, राइट। सो 8086 में पर्टिकुलर जो भी रजिस्टर है उसका एक पर्टिकुलर कोई ना कोई फंक्शन है बेसिकली, राइट। So CX is what, counter register, and similarly CX is also having 2 8-bit registers called CL and CH, and when we combine it then you will get CX। okay, in some instructions contained of the CX as a counter। so basically बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, उसमें काउंटर में आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, एज ए काउंटर की वैल्यू, काउंटर की तरह। जैसे सपोज आपको एक इंस्ट्रक्शन यूज करना है लूप, और वो लूप सपोज आपको चलाना है 10 टाइम चलाना है आपको, तो वो 10 ये किस में स्टोर करोगे बेसिकली, ये 10 बेसिकली स्टोर करोगे काउंटर में स्टोर करने वाले हैं। जैसे लूप 1 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, अगेन ये 10 के बाद में ये क्या हो जाएगा, 9 ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, देन अगेन अपडेट होते ही 8 7 6 5 4 0 कुछ इस तरह से, राइट। और इफ इट इज 0 देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड। सो कुछ इस तरह से वो सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे सपोज लूप के लिए हो गया, शिफ्ट के लिए
यूज करते हैं, रोटेट में यूज करते हैं बेसिकली। ओके, सो दिस इज अबाउट द काउंटर रजिस्टर। सपोज आपको डाटा आपको ट्रांसफर भी करना है। सपोज आपको एक स्ट्रिंग ट्रांसफर करनी है, 10 बिट की स्ट्रिंग है, और वो इस मेमोरी लोकेशन से इस मेमोरी लोकेशन पे आपको ट्रांसफर करनी है। तो अभी क्या करेंगे, और सपोज 10 बिट की कोई स्ट्रिंग है, तो वो 10 स्टोर करेंगे किसमें, काउंटर रजिस्टर में स्टोर करेंगे बेसिकली। सो यहाँ पे भी क्या होगा, बेसिकली यूज होगा इसका काउंटर रजिस्टर का। सो हर एक रजिस्टर का एक अपना एक इंडिविजुअल यूज है उसका, ठीक है। And next is data register, and this is denoted by DX. So it is also consists of two 8-bit register. So this is DL and DS. When we combine it, then it will be DX. And so this is called data register, and it is used to hold the data. Okay. So कौन से डाटा होल्ड करते हैं अभी समझते हैं। सपोज you have to perform multiplication। अब मल्टीप्लिकेशन में आप सपोज परफॉर्म कर रहे हो 16 बिट इंटू 16 बिट। सो रिजल्ट कितना होगा, बेसिकली 32 बिट का रिजल्ट होगा। अब 32 में से जो भी आपका लोअर है, लोअर जो पार्ट है वो आपका स्टोर होगा किसमें, AX में, और जो हायर ऑर्डर बाइट है वो आपका बेसिकली स्टोर होगा किसमें, DX में स्टोर होगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट होगा लोअर में, और ये आपका स्टोर होगा किसमें, हायर में स्टोर होगा मल्टीप्लिकेशन में। 16 बिट इंटू 16 बिट के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट 32 बिट का होगा। तो 32 बिट में 32 बिट के रिजल्ट की जो लोअर बाइट है, लोअर में आपका ये AX में स्टोर होगा, और हायर आपका DX में स्टोर होगा। ये मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। सो वो आया समझ में, टू यूज टू होल्ड द डेटा ही होल्ड कर रहा है बेसिकली। और सपोज एक अनदर एग्जांपल, सपोज डिवीजन। सो डिवीजन में सपोज आपको 32 बिट्स को डिवाइड करना है बेसिकली 16 बिट में। 16 बिट का डाटा है, तो 16 बिट का डाटा के लिए आपको रजिस्टर यूज हो जाएगा, ठीक है, कोई भी रजिस्टर आप यूज में कर लो। देन 32 बिट के लिए जो यूज होगा बेसिकली, आप दो रजिस्टर यूज में लेने वाले हैं। सपोज ये होगा कुछ इस टाइप का, ये 16 बिट का, ये 16 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। तो जो हायर डिविडेंड होगा, हायर, दिस इज व्हाट 32 बिट का आपको कुछ इस तरह से डिवाइड है x बाई y। x जो है 32 बिट का है, y जो है 16 बिट का है, ठीक है। सो जो डिविडेंड की हायर बिट है वो बेसिकली dx में स्टोर होगा, हायर, ये dx, हायर जो है वो dx में स्टोर होगा, और इसकी जो लोअर है वो स्टोर होगा AX में। तो सपोज x0 टू x15, और ये बेसिकली स्टार्ट होगा x16 टू x31, ठीक है। सो डिवीजन आप परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, आफ्टर ऑपरेशन के बाद में जो रिमाइंडर जो होगा बेसिकली, वो DX में स्टोर होगा। क्वोशिएंट के लिए जो यूज होगा वो बेसिकली यूज होगा AX, ठीक है। सो नेक्स्ट इज पॉइंटर रजिस्टर। सो अभी हमने स्टडी किए जनरल पर्पस रजिस्टर, द नेक्स्ट इज पॉइंटर रजिस्टर। सो फर्स्ट इज स्टैक पॉइंटर रजिस्टर एंड बेस पॉइंटर रजिस्टर। So basically these registers are used to access the data in stack segment, okay, and the stack segment is used for to store the temporary data। सपोज आपको जब भी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो उस टाइम टेम्परेरी डाटा स्टोर करेंगे, वो किसमें, स्टैक सेगमेंट में स्टोर करेंगे, ओके। एंड इट होल्ड्स द ऑफसेट फॉर द स्टैक सेगमेंट। इट मीन स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर बेसिकली क्या करेगा, स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर बेसिकली ऑफसेट की वैल्यू
होगी स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर में। चलो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। सपोज मैंने लिखा मूव ax कोमा bp, कुछ इस तरह से, और मूव एक्स ax कोमा bp। सो बेसिकली बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर ये बेसिकली यूज होते हैं किसके लिए, सपोज स्टैक सेगमेंट का डाटा एक्सेस करने के लिए। सो जब भी ये इंस्ट्रक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा तो बेसिकली ये बेस पॉइंटर का कंटेंट, तो ये कहाँ से, बेस पॉइंटर का कंटेंट कहाँ से सोल्व होगा, बेसिकली ये बेसिकली कहाँ पे मिलेगा इसको। सो माइक्रो प्रोसेसर विल लुक इनटू स्टैक सेगमेंट। ओके, एंड सपोज कुछ इस तरह से लिखा मैंने, मूव ax कोमा di, और लिखा सपोज si, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। सो बेसिकली उस टाइम ये बेसिकली किसमें सर्च करेगा बेसिकली डाटा, ये बेसिकली डाटा सेगमेंट का पार्ट हुआ। ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर विल लुक द डाटा इनटू ds डाटा सेगमेंट, और इस टाइम बेस पॉइंटर बेसिकली क्या करता है, यूज टू एक्सेस द डाटा इन स्टैक सेगमेंट। सो ये इस टाइम डाटा, कौन सा डाटा एक्सेस होगा, स्टैक सेगमेंट का डाटा एक्सेस होगा बेसिकली। और स्टैक सेगमेंट के स्टैक सेगमेंट तो बेसिकली एक इफेक्टिव एड्रेस कंटेन करेगा, और बेसिकली जो इसके लिए स्टैक सेगमेंट के लिए जो ऑफसेट होगा वो आपके स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर होल्ड करेंगे। एंड नेक्स्ट इज कंटेंट्स ऑफ द SP और स्टैक पॉइंटर ऑटोमेटिकली अपडेटेड ड्यूरिंग द पुश एंड पॉप ऑपरेशन। सर पुश एंड पॉप ऑपरेशन आपने बेसिकली पढ़ा भी होगा डेटा स्ट्रक्चर में, पुश और पॉप। स्टैक भी आपने पढ़ा हुआ होगा बेसिकली। सो सिमिलरली स्टैक क्या होता है बेसिकली, स्टैक इसकी साइज क्या है बेसिकली, टोटल मेमोरी स्टैक सेगमेंट का साइज कितना है, 64 KB है इसका, because the 8086 memory is divided into can be divided into 4 segment, and each segment is having 64 KB size. Okay, and stack. Okay, so basically अगर 20 बिट फिजिकल मेमोरी एड्रेस फाइंड आउट करनी है तो स्टैक सेगमेंट के पास तो आपको मिलेगा इफेक्टिव एड्रेस, और देन आपको जो बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर इनके पास में आपको मिलेगा क्या, ऑफसेट। सो बेसिकली अगर ये स्टैक है तो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट का जो भी एड्रेस है वो बेसिकली स्टैक पॉइंटर के पास में होगा। ठीक है, इसको हम आगे भी समझेंगे बेसिकली जब स्टैक पॉइंटर यूज होगा तब। ओके, सॉरी, स्टैक सेगमेंट जब भी आप पढ़ेंगे फाइनली तब हम बेसिकली और भी पढ़ेंगे इसको। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंटर रजिस्टर, एंड नेक्स्ट इज इंडेक्स रजिस्टर। So basically, in this category, there are two type of register. First is source index register and destination index register. So basically, this is used for what, indexed addressing, and these registers are used together to transfer the data string. So suppose आपको data string जब भी आपको transfer करनी हो तब हम क्या करेंगे, source index और destination index डिफाइन करेंगे बेसिकली। उस टाइम आपको इंडेक्स रजिस्टर यूज होगा। कैसे, सपोज ये आपकी मेमोरी है, इस मेमोरी से आपको इस मेमोरी में कोई भी डाटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, सोर्स, ये आपका क्या हुआ, डेस्टिनेशन। सो सपोज यहां ये पूरे, इसकी पूरी मेमोरी मेरे को, पूरे एलिमेंट मेरे को ट्रांसफर करने। सो इसका जो भी अपर पार्ट होगा वो आपको डिफाइन करेगा क्या, सोर्स इंडेक्स। सिमिलरली इसका जो अब वो ऊपर वाला जो ये इंडेक्स, इसका जो रजिस्टर की इसकी जो एड्रेस है बेसिकली वो होगा क्या, डेस्टिनेशन इंडेक्स बेसिकली। and these index register are used for together to transfer the data string. So डाटा स्ट्रिंग बेसिकली अगर यूज स्ट्रिंग टाइप में डाटा ट्रांसफर करना हो तो बेसिकली ये सोर्स इंडेक्स और डेटा
डेस्टिनेशन इंडेक्स यूज होता है इसके लिए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, there is one more register is used when we are using this source index and destination index. So there is one instruction to transfer the string, that is move as moves, okay, move as, ये आगे पढ़ेंगे बेसिकली, स्ट्रिंग ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है बेसिकली moves, okay, and suppose how many bits are going to be transferred. सो उसका जो नंबर होगा, काउंट नंबर जो बेसिकली होगा, वो बेसिकली स्टोर होगा किसमें, काउंटर रजिस्टर में। अभी हमने पढ़ा है बेसिकली कि काउंटर रजिस्टर में बेसिकली इस टाइप के जो भी नंबर, कितने बिट्स ट्रांसफर करनी है, सो वो स्टोर होगा किसमें, सी एक्स। सपोज 10 बिट में 100 बिट ट्रांसफर करनी है, तो सी एक्स में मैं लोड करूंगा 100 बिट, ठीक है। So next is segmentation register. So there is one more important concept in 8086, that is memory segmentation. So concept is what, the whole memory can be divided into in some segments, and each segment is having 64 KB size, okay, and there are four segments. So first one is code segment, data segment, stack segment, extra segment. So code segment is for what, to store the code or program, and data segment is what, डाटा को स्टोर करने के लिए, स्टैक सेगमेंट मींस टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए बेसिकली, एक्स्ट्रा सेगमेंट मींस कोई कॉमन डाटा आपको स्टोर करना हो या एक्स्ट्रा डाटा, मेनली डाटा आपने एक्स्ट्रा में डाटा सेगमेंट में स्टोर कर दिया, लेकिन कुछ डाटा एक्सेस में अगर डाटा है आपके पास में, तो वो डाटा आप एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर कर सकते हो। सो दिस इज द फीचर of the 8086 microprocessor, and these are 16-bit registers, and size of this each segment is having 64 KB, okay. And what is the purpose of the segmentation register or memory segmentation is what, so at a time we can access the 4 into 64 KB memory, it means 256 KB. And one more thing is, same memory can be accessed by the multi-user, and this is what multi-user configuration. And one more advantage of the segmentation register is what, we are having a 16-bit register, code segment, data segment, stack segment, extra segment, 16-bit registers हैं basically, but the physical memory का जो एड्रेस है बेसिकली, दैट इज ऑफ 20 बिट एड्रेस। 20 बिट है या नहीं है बेसिकली, राइट। सो 16 बिट रजिस्टर से 20 बिट एड्रेस आप कंप्यूट करते हैं बेसिकली विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव एड्रेस एंड ऑफसेट। सो इफेक्टिव एड्रेस बेसिकली होल्ड करेगा कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट द्वारा, और डिफरेंट जो रजिस्टर्स होंगे वो बेसिकली ऑफसेट एड्रेस होल्ड करेंगे। और इफेक्टिव एड्रेस और ऑफसेट का यूज करके आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं बेसिकली फिजिकल मेमोरी एड्रेस, तो वो आपने बेसिकली मैंने कंसेप्ट बताया भी है। चलो बेसिकली और बता देता हूँ। सपोज आपका जो इफेक्टिव एड्रेस है वो है आपका 5000H। ये तो आपका सपोज हुआ, सपोज एक आपके पास में कोड सेगमेंट है, तो कोड सेगमेंट का आपके पास में कोड सेगमेंट का एड्रेस हुआ है बेसिकली ये। और सपोज आपको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो कि एक ऑफसेट होल्ड करता है उसका है 2345H। सो द फिजिकल मेमोरी एड्रेस, फिजिकल मेमोरी का एड्रेस 20 बिट का होगा। वो कैसे कैलकुलेट करोगे कि कोड सेगमेंट इंटू 10H प्लस ऑफसेट,
So offset is held by the IP for the code segment. So CS into 10H क्या मिला आपको, आप करोगे तो आपको मिलेगा 50000। IP ऐड करोगे क्या, IP इज व्हाट, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर 2345, ये करोगे 2345, ऐड करोगे क्या मिलेगा 52345H। तो देखो 12345, ये बेसिकली कितने बिट का एड्रेस हो गया, 20 बिट का। तो आपके पास में 16 बिट का रजिस्टर प्रेजेंट है, बट टोटली मेमोरी, फिजिकल मेमोरी कितनी बिट की है, 20 बिट का। तो इससे आप कंप्यूट भी कर सकते हो, 16 बिट एड्रेस का यूज करके 20 बिट एड्रेस इस तरह से कंप्यूट करते हैं। एंड okay, so this is all about the segmentation register. So let us discuss first code segment. So actually, what is the concept of memory segmentation is what? Suppose this is microprocessor 8086, and microprocessor 8086 is having 20-bit address line A0 to A19. Then the total number of memory location will be what, 2 to the power 20. Then it means 1 megabyte. टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 20 और 1 मेगाबाइट। तो इट मींस 20 बिट का एड्रेस होगा आपके पास में। तो इट मींस इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5, ओके, एंड इज व्हाट 1 2 3 4 and 5 of H, okay, and the maximum memory for the 8086 will be what, 1 MB, and because n is what, 20 bit address, 20 bit address lines, so the maximum memory that can be allocated for the 8086 microprocessor will be 1 megabyte, 1 MB, okay, and physical memory address, physical address will be like this, 0000s to 5 times f of h. And segmentation, so we have each segment is having 64 KB size, right? Each segment is having 64 KB size, and suppose each segment register is having 16 bit, so register डाटा कितने बिट का आएगा, बेसिकली 16 बिट का डाटा अवेलेबल होगा इसमें। अब सपोज if you talk about the code segment, so let us discuss about code segment. So code segment is also 16 bit register, okay, so it means it will store the 16 bit data, and that data will define the code, it means address of the code, okay, and how the physical address is being calculated. Suppose code segment is having address of the code, and that is of 16 bit register, okay, so suppose content of CS is what, 6000H, okay, and offset is stored in the instruction pointer. Instruction pointer also, size of instruction pointer is also 16 bit register, then okay, this will be 6000, because code segment is also 16 bit register, so 1 1 2 3 4, okay, and instruction pointer holds the offset, okay, so suppose this is having 3347H. So how to calculate physical memory address? So just do it, content of CS into 10H plus IP.
then CS answer will be 60000, ऐड क्या करना है 3347. दिस इज आल्सो इन हेक्साडेसिमल, दिस इज आल्सो इन हेक्साडेसिमल. सो अगर हेक्साडेसिमल में नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो कि 10 इंटू एच लिखा हुआ है, तो बेसिकली 10 इंटू एच क्या हुआ कि 10 ये हेक्साडेसिमल में है तो 0 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 16, तो डेसिमल में 16 हो गया. इस नंबर को डेसिमल में चेंज करो, 16 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी कर सकते हो. तो फिजिकल जो एड्रेस होगा वो हो जाएगा आपका 63347H, right? So this is what physical memory address calculation. Okay, so next we will discuss about the code segment. So next is code segment register. This is what CS. So this is also having 16-bit register, and this register is used to point out the segment of the memory that contains the code. It means code को store करने के लिए basically अलग memory में एक space बना दिया. इसका size है total memory का वो है 16 KB, and ठीक है, इस register का particular each section जो है वो है 16 bit का basically. ओके, बेसिकली यहां से लेके यहां तक टोटल जो है वो है 64 KB का साइज, और इंडिविजुअल वो है 16 बिट का. ठीक है, एंड दिस इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द सेगमेंट ऑफ द मेमोरी that contains the code. So basically it contains the base or the start of the current segment, current code segment. So basically code segment register basically क्या होल्ड करता है, बेसिकली स्टार्टिंग कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग पोजीशन बताता है, बेसिकली उसका एड्रेस बताता है बेसिकली. एंड ऑफसेट के लिए बेसिकली इसमें यूज करते हैं क्या, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. सो 20 बिट का जो फिजिकल एड्रेस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कोड सेगमेंट में से, तो बेसिकली कोड सेगमेंट में बेसिकली आपको क्या मिलेगा, इफेक्टिव एड्रेस. इफेक्टिव एड्रेस कहां पे स्टोर होगा, बेसिकली कोड सेगमेंट में. और ऑफसेट किस में स्टोर होगा, बेसिकली ऑफसेट स्टोर होगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में. ओके, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो कुछ इस तरह से लिखा जाता है CS और IP, डिनोट कुछ इस तरह से करते हैं इसको. ये आपको क्या बताता है, इफेक्टिव एड्रेस, ये आपको बताता है क्या, ऑफसेट बताता है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो बेसिकली कंसेप्ट है क्या, CS इंटू 10H प्लस IP, अभी किया भी था हमने. या फिर बोल सकते हैं क्या कि CS को 16 से मल्टीप्लाई करो डेसिमल में, फिर IP को ऐड करो, फिर वापस से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो बेसिकली. ओके, तो बेसिकली कंसेप्ट यही है इसका कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करो और कुछ इस तरह से. ठीक है, so this is the process through which we calculate the physical address calculation. So next is data segment register. So similarly कोड सेगमेंट रजिस्टर हमने स्टडी किया. कोड सेगमेंट में बेसिकली कोड स्टोर होगा, किसमें, कोड सेगमेंट रजिस्टर में. और सेगमेंट की जो इसकी साइज होगी, बेसिकली ईच सेगमेंट इज हैविंग 64 KB साइज. एंड similarly data segment register is having 16-bit register, and it points to the current data segment basically. Okay, and for offset SI and DI is used. SI is what, source index register, and DI is what, destination index register for the string operation. So जब भी आपको string operation perform करना हो, so these both index registers, these are called indexing register, indexed register. Okay, we have already studied about these index register. So these both registers are used together whenever we have to transfer the string. Okay, so this is source index and destination index. Basically source और destination index
इसलिए यूज करते हैं बेसिकली, ताकि दोनों में कोई कंफ्यूजन ना हो बेसिकली, कि डाटा आपको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, आपको सपोज आपको 100 बाइट आपको ट्रांसफर करनी है, तो आपको क्लियर हो कि कहाँ से कहाँ आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो। सो जहां से ट्रांसफर कर रहे हो उस वहां आप यूज करेंगे सोर्स इंडेक्स, जहां पे आपको डाटा ट्रांसफर करना है वो हो जाएगा क्या, डेस्टिनेशन इंडेक्स। और कितनी नंबर ऑफ बाइट आपको ट्रांसफर करनी है वो बेसिकली जाएगा किसमें, काउंट जाएगा काउंटर रजिस्टर में, जो हमने स्टडी किया है बेसिकली। सो डाटा सेगमेंट रजिस्टर में जो इफेक्टिव एड्रेस होगा वो किसमें जाएगा, डाटा सेगमेंट में। और बेसिकली ऑफसेट जो होगा, ऑफसेट के लिए हम किस क्या यूज करेंगे, या तो एस आई या फिर एस आई और डी आई, ये यूज करेंगे बेसिकली। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू बाय एन एग्जांपल। सपोज दिस इज ए मेमोरी, और मेमोरी का बेसिकली ये कोड सेगमेंट है, दिस इज कोड सेगमेंट। ओके, दिस इज कोड सेगमेंट and this is starting from 6000000h. Okay, and this is what 6FFFFH, and this is code segment. And a code segment register is having a 16-bit register. So this is the initial base or start of the code segment. Okay, so basically this is data segment. So this data segment this is data segment. So the base or starting of the data segment is from 6000h and ending to 6FFFFH, because size is what, 64K. Then what about the data segment? So data segment कैसे find out करेंगे, the first 4 bit of the this physical address. Start कहाँ से हो रहा है, बेसिकली इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। तो डाटा सेगमेंट की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डाटा सेगमेंट में कितने बिट का रजिस्टर होगा, बेसिकली डाटा सेगमेंट 16 बिट का रजिस्टर है। बेसिकली डाटा सेगमेंट 16 बिट का रजिस्टर है। डाटा सेगमेंट में फाइंड आउट करना आपको डाटा सेगमेंट की वैल्यू, तो डाटा सेगमेंट बेसिकली किसको पॉइंट आउट करता है, बेस और स्टार्ट वैल्यू ऑफ द डाटा सेगमेंट। और डाटा सेगमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली डाटा सेगमेंट में 16 बिट की वैल्यू आएगी, क्योंकि 16 बिट का रजिस्टर है ये। और ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, फिजिकल एड्रेस शो कर रहा है, बेसिकली फिजिकल मेमोरी का एड्रेस शो कर रहा है, क्योंकि ये क्या 20 बिट का एड्रेस है। डाटा सेगमेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, फिजिकल एड्रेस गिवन हो तो स्टार्टिंग के 4 बिट, स्टार्ट 4 बिट, तो बेसिकली एड्रेस क्या होगा, 6000h, ये एड्रेस होगा बेसिकली, ये स्टोर होगा डाटा सेगमेंट रजिस्टर में, बेसिकली ये स्टोर होगा, राइट। अब नेक्स्ट सपोज ऑफसेट इज गिवन, एंड ऑफसेट किसमें गिवन होगा, सपोज ऑफसेट गिवन होगा किसमें, SI. So SI is given, and SI is what, 2345H, 2345H। तो फिजिकल मेमोरी एड्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो डाटा सेगमेंट इंटू 10H प्लस सोर्स इंडेक्स SI। ओके, सो मल्टीप्लाई किया 10H से, तो आपको क्या मिला 6, फिर 00000, ये भी H, और देन ऐड कर दिया किसको, 2 3 4 5, क्या मिला आपको 5 4 3 2 6 ऑफ H। क्लियर। सो ये हो गया आपका क्या, फिजिकल मेमोरी फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन आपकी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। Okay, so we have studied about the code segment register, then data segment register. So now we are going to study the stack segment register. Okay, so similarly like code segment and data segment, stack segment is also having 16-bit register. Okay, and this points to the current stack segment. So basically stack segment is the part of the memory that is used to store the temporary data. So suppose in the calculation, suppose arithmetic calculation or the logical calculation, suppose we want to store some data in a temporary form, then we use a stack. So stack is basically used to store the temporary data.
So basically stack segment register point out the base or start value of the current stack segment. Okay. So basically stack segment holds the base or start value of stack segment. Okay, and this is also having 16-bit register and offset. बट फिजिकल एड्रेस, फिजिकल मेमोरी कैलकुलेशन, आप फिजिकल एड्रेस आप कैलकुलेट करें तो वो कितने बिट का होगा, 20 बिट का. तो ऑफसेट के लिए बेसिकली स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर यूज करते हैं, राइट. सो सिमिलरली सपोज एक एग्जांपल वही कंसीडर करते हैं. सपोज ये मेमोरी का एक पार्ट है, तो मेमोरी का एक पार्ट में से सेगमेंट मैंने डिवाइड किया जो कि 64 KB का सेगमेंट है बेसिकली. And this is starting from 70004 एंड होगा 7FFFFH, कितना हो गया 64 KB. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज stack segment. This is stack segment. Okay. So what will be the value of stack segment register? तो stack segment register की वैल्यू क्या होगी बेसिकली. So this will hold the base value of the current stack segment. So base value आपकी सपोज स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू ये है, बेस वैल्यू है ये है, बट ये कितने बिट में रिप्रेजेंट की हुई है आपकी 20 बिट में रिप्रेजेंट की हुई है. ये कितने बिट का रजिस्टर है, 16 बिट का रजिस्टर है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टार्टिंग की जो 4 डिजिट होंगी 7000, ये आपका होगा क्या, स्टैक सेगमेंट होगा. अब सपोज स्टैक पॉइंटर ऑफसेट, अब ये ऑफसेट गिवन है कितना 7344H. तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, फिर से कैसे कैलकुलेट करोगे आप, फिजिकल. So physical address is given by stack segment into 10H plus stack pointer. So this will be 70000H plus 7344H. Okay. So physical address will be 77344H. देखो 1 2 3 4 5 20 बिट का एड्रेस हो गया. सो दिस इज स्टैक सेगमेंट रजिस्टर. सो अब क्लियर हुआ आपको बेसिकली सेगमेंट रजिस्टर का. सो नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर. सो अभी आपने स्टडी किया बेसिकली कोड सेगमेंट रजिस्टर, डाटा सेगमेंट रजिस्टर, और आपने भी स्टडी किया स्टैक सेगमेंट रजिस्टर और देन एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर. So like code segment, data segment, stack segment. So ES is also having 16-bit register, and it points to the current extra segment. Okay, and offset is what, source index or destination index. So both index register are used for the offset for extra segment register. Okay, simply वही example आप फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज ये मेमोरी है, मेमोरी का कोई भी एक एड्रेस है, सपोज आपने ES सेगमेंट कंसीडर किया मेमोरी का, और बेस वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो है 80000H, एंडिंग जो हो रही है वो 8FFFH. कुछ इस टाइप से. ऐसा नहीं है कि कोई ये 000 से स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है ये बार बार 0 ऐसे क्यों ले रहे हो. ये केवल इजी अंडरस्टैंड करने के लिए कि बेसिकली 64 KB FFFF 64 KB होगा ये. तो बेसिकली इजीली आपको समझ में आ जाए, तो इसके लिए आप कुछ भी ले सकते हो बेसिकली. सो इजीली अंडरस्टैंड के लिए आपको ये लिया है बेसिकली, राइट. तो ये कितने KB का होगा, 64 KB का. तब आपको पूछे कि एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर जो भी होगा, सो एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर बेसिकली इसमें क्या होगा, क्या वैल्यू होगी इसकी,
कि एक्स्ट्रा सेगमेंट की बेस वैल्यू क्या है। सो बेस वैल्यू ये है आपकी बेस वैल्यू। अब बेस वैल्यू की स्टार्टिंग की 4 डिजिट, सो कितनी हो जाएगी 8000H। देन अगेन ऑफसेट, ऑफसेट सपोज आपको गिवन है 2347H, तो फिजिकल एड्रेस क्या हो जाएगा बेसिकली 82347H। अब की बार मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। So this is all about the memory segmentation in the 8086. So you can see in this diagram, so all the memory in divided in 4 segments. So this is for code segment. So the base value of the code segment is this, and the base value is held by the code segment register. Okay, and offset value is held by the IP instruction pointer. Okay, and so this is what code segment register. Okay, so the base value or starting value is held by the code segment register, and offset is held by the instruction pointer. And this size of this code segment is of 64 KB. Another, and suppose these are these segments are not are joined together. So these are suppose this is another portion of the memory. This is what code segment, and to store the code, and one more segment that is stack segment. So the base value of the stack segment is held by the stack segment register. Okay, and the offset value is held by the stack pointer or base pointer. Okay, so the physical memory address for this segment can be calculated by like this: CS into 10H plus of I. Simply for this stack segment into 10H plus base of, or simply we can also write this 10H plus stack point. Okay. Similarly, the data segment. So the base value of the data segment is held by the data segment register, that is 16-bit register, and the offset is held by the source index, and the size of this is what 64 KB. And similarly for the extra segment, the base value is held by the extra segment register, and that is having 16-bit register, and the offset is held by the destination index. Okay, and this is what FFFH. So this is showing what the starting base memory. This is starting part of the physical memory, starting from 0000340H and ending FFFFH. And somewhere in between 0000H to FFFH, so there are 4 segments for the code, to store the code, to store the data, and to store the excessive data, and to store the temporary data. Okay, so this is all about the memory segmentation.